بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت ہمیشہ سے اپنے شوہر کی محبت کی طلبگار رہی ہے، لیکن شوہر کی محبت سب عورتوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں اپنے شوہر کی ایک نظر التفات دیکھنے کو ترستی تھی۔ میں اس کے لیے راہ میں پلکیں بچھائے بیٹھی رہتی اور وہ ظالم ایک نظر بھی مجھے اٹھا کر نہ دیکھتا۔ لیکن پھر ایک صبح ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ میری بدبختی کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب ابا نے اکھڑتی سانسوں کے ساتھ سلمان کا نام لیا تھا۔ سلمان ابا کا منہ بولا بیٹا تھے۔ ابا جب اپنے اچھے دنوں میں ایک اچھا خاصا کاروبار چلا رہے تھے، ان پر آسودگی کے دن تھے، تو انہوں نے سلمان کو اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا۔ بعد میں جب سلمان بڑے ہو گئے، اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے، تو ابا کے حالات بھی خراب ہو گئے۔ سلمان نے وہاں جا کر ابا کی خبر نہ لی، جبکہ ابا کے دل میں سلمان کی یاد آج بھی پہلے کی طرح تازہ تھی۔ وہ انہیں اپنا فرما بردار اور مطیع بیٹا سمجھتے تھے۔ ابا کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب زندگی کی امید باقی نہ رہی تو انہوں نے سلمان کا نام لیا۔ میں تو سلمان کو تقریباً بھول ہی چکی تھی۔ شاید اس وقت 10 سال کی ہوں گی جب وہ اس گھر سے گئے تھے۔ اگرچہ ابا سلمان کو فون کرنا چھوڑ چکے تھے، لیکن اس دن اپنی طبیعت کے پیش نظر انہوں نے مجھے سلمان کو کال کرنے کا کہا۔ خوش قسمتی سے سلمان نے کال اٹھا لی۔ ان کا لہجہ سرد تھا۔ میں نے انہیں ابا کی بیماری کا بتایا تو دل پسیج گیا۔ اگلے ہی دن کی فلائٹ سے وہ پاکستان واپس آ گئے۔ ایئرپورٹ پر آ کر انہوں نے پاکستان والے نمبر سے مجھے کال کی۔ ہاسپٹل کا پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ ابا فلاں ہاسپٹل میں داخل ہیں۔ وہ دوڑے دوڑے وہاں پہنچے۔ اس وقت تک ابا کی سانسیں اکھڑ چکی تھیں۔ انہوں نے جاتے جاتے صرف سلمان کو اتنا کہا، بیٹا میری بیٹی ماہروخ کا خیال رکھنا، اسے اکیلے نہیں چھوڑنا، اس سے نکاح کر لینا۔ ابا تو یہ کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن میری زندگی عذاب بن کر رہ گئی۔ کفن دفن سے فارغ ہو کر سلمان مجھ سے کہنے لگے، اب تیار ہو جاؤ، ہمیں اسلام آباد چلنا ہے۔ سلمان نے کہا تو میں اداس ہو گئی۔ میں ایسے تو نہ جاؤں گی سلمان، ابا نے آپ سے میرے نکاح کا وعدہ لیا ہے، آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ بنا نکاح کے میں کس رشتے کے ساتھ آپ کے ساتھ جاؤں۔ میں نے سلمان سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پڑھتے بھی کیوں نہ، وہ پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ تھے۔ ایسے میں ان کی زندگی میں میرا آنا کوئی آسان بات تو نہ تھی۔ خیر اب ابا کی وصیت کا مان تو رکھنا ہی تھا۔ ویسے بھی مجھ سے اتنی جلدی شادی کون کرتا۔ میں بھی سلمان کو ہمیشہ سے بھائی سمجھتی تھی۔ اس رشتے کو قبول کرنا میرے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ سلمان نے چند گواہ بلائے اور گواہوں کی موجودگی میں مجھے اپنے نکاح میں لے لیا۔ میں ان کے ساتھ اسلام آباد آ گئی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 25 سالہ خوبرو عورت نے دروازہ کھولا۔ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ سلمان کی پہلی بیوی تھی اور میں اس بارے میں جانتی تھی۔ سلمان کے بچے اس سے لپٹ گئے جبکہ ان کی بیوی نے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ شاید ابھی تک وہ ہم دونوں کے رشتے کی حقیقت سے واقف نہیں تھی۔ سلمان سے پوچھا یہ کون ہے تو سلمان نے کہہ دیا خان بابا کی بیٹی ہے۔ خان بابا نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے، بالکل اپنے بیٹوں کی طرح۔ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیٹی کا خیال رکھنے کو کوئی نہیں تھا، اسی لیے میں اسے یہاں لے آیا۔ کہتے ہیں کہ احسان کا بدلہ ہمیشہ چکانا چاہیے۔ انہوں نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا تو ان کی بیگم متاثر ہو گئی۔ وہ بھی گاؤں کی بھولی بھالی عورت تھی۔ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، مگر یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ بے نامی رشتے کتنا دکھ دیتے ہیں۔ میں سلمان کی بیوی تھی، لیکن مجھے ایک علیحدہ کمرہ دیا گیا۔ سلمان کی بیوی اگرچہ خوش اخلاق عورت تھی، مگر وہ میری حقیقت سے ناواقف تھی۔ سلمان یہاں آ کر اجنبی بن گئے تھے۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ میں دن رات ان کا انتظار کرتی رہتی، مگر وہ بھول کر بھی میرے کمرے میں نہ آتے۔ انہیں اپنی خاندانی بیوی کے ناراض ہونے کا بہت ڈر تھا، شاید اسی لیے وہ مجھے جی بھر کے نظر انداز کرتے تھے۔ میں ان کی باتوں پر اپنا دل محسوس کر رہ جاتی، مگر کیا کر سکتی تھی، میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ان کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ صبح اٹھتے ہی میں کام کاج میں لگ جاتی۔ سلمان سامنے ہوتے تو میں ان کے لیے ناشتہ بناتی، جبکہ اس کی بیوی کی نظر میں ایک خادمہ کی حیثیت سے یہاں یہ کام کر رہی تھی۔ اسے کیا معلوم کہ میں تو اپنے شوہر کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ اس دن خوش قسمتی سے ساجدہ یعنی کہ سلمان کی بیوی سو رہی تھی۔ سلمان جلد اٹھ گئے، میں بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ میں نے ناشتہ بنانے کے لیے کچن کا رخ کیا تو سلمان بھی میرے پیچھے آ گئے۔ کرخت آواز میں بولے، یہ ڈرامے کر کے تم مجھے متاثر نہیں کر سکتی۔ جانتی ہو مجھے تم سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ تمہیں اس گھر میں جگہ دی ہے،
इसी को काफ़ी समझो, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सलमान की इस बेइज्जती पर मुझे शिद्दत से एहसास तौहीन हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा अपना शौहर मुझे इतना कमतर महसूस करवाएगा। बहरहाल क्या हो सकता था, मैं अपने नसीब पर आंसू बहाती रह गई। उस दिन के बाद से मैंने नाश्ता बनाना छोड़ दिया। अगर साजिदा बेगम के कहने पर बना भी लेती तो नाश्ता देने खुद न जाती, साजिदा के हाथ में थमा देती। साजिदा मेरी इसी शराफत की दीवानी हो गई। शायद वो जान गई थी कि मुझे उसके शौहर से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक दिन उसका मान भी टूट गया। हुआ यूं कि साजिदा अपने बच्चों के साथ बाजार में शॉपिंग के लिए गई हुई थी। मैं घर में अकेली थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने सलमान खड़े थे। उन्हें देखकर मैं घबरा गई। मैं जल्दी से आकर अपने कमरे में बैठ गई। सलमान शायद कोई फाइल ढूंढने आए थे। गलती से मेरे कमरे का रुख कर लिया। मुझसे मेरा हाल चाल पूछने लगे। मेरे लिए तो ये लम्हा किसी ख्वाब से कम नहीं था। मैंने मुख्तसरन अपना हाल बताया। तभी दरवाजे से झांकती 2 आंखों पर मेरी नज़र पड़ी। ये फ़कीरा बुआ थी, जिसका काम ही लोगों के घरों में ताक झांक करना और इधर की उधर करना था। बस फिर क्या था, फ़कीरा बुआ ने मुझे और सलमान को बात करते देख लिया। हालांकि मैं उनके निकाह में थी, उनकी जायज़ बीवी थी, मगर ये बात फ़कीरा को कहाँ मालूम थी। शाम को बेगम साहिबा वापस आईं तो फ़कीरा ने खूब मसाले लगाकर उन्हें बताया कि मैं उनके शौहर पर डोरे डालने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुनना था कि बेगम साहिबा भी गुस्से में आ गईं। मुझे बालों से घसीटती हुई बाहर ले आई। मेरा शौहर सलमान भी ये तमाशा देख रहा था, मगर वो कुछ नहीं बोला। उसने तो मुझे अपनी बीवी तक तस्लीम नहीं किया था, बस निकाह की कैद में बांध कर यहाँ रखा था। वो मेरा क्या साथ देता, बस बुत बना खड़ा रहा। मुझे एक बार फिर अपने नसीब पर आंसू बहाना पड़े। सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी एक दिन मुझे इस कदर बेबस बना देगी। अब्बा ने ये नसीहत क्यों की थी? काश वो ऐसा ना कहते तो मेरी ज़िंदगी आसान होती। मैं दिल ही दिल में सोचती। उस दिन के बाद से साजिदा बेगम की नज़रें भी बदल गईं। उनको तो जैसे मैं दुनिया की बदकिरदार तरीन लड़की लगने लगी। बात बात पर मुझे ताने देती, कहती तेरे जैसी लड़कियां ही दूसरी औरतों का घर खराब करती हैं। अगर तूने ये सब ही करना था तो मुझे पहले बता देती। मैं तेरी शादी चौकीदार या ड्राइवर्स किसी से भी करवा देती, अगर इतना ही शौक है तो। साजिदा की बात पर मेरा दिल छलनी हो गया। ये क्या कह रही थी? क्या मैंने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सलमान से बात की थी? हरगिज़ नहीं। जैसा वो सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। अगर होता भी तो कम से कम गुनाह नहीं था, और ना ही मैं बदकिरदार थी। मगर साजिदा का दिमाग तो आसमानों से बातें कर रहा था। अगले दिन शाम के वक्त साजिदा ने मुझे चाय तैयार करने का हुक्म दिया। मैं चाय बनाने में मसरूफ़ हो गई। वो तो मुझे सर खरीद बांधी ही समझती थी। मैंने नहीं पूछा कि क्यों चाय बनानी है। उसने मामूल से हटकर 5-6 कप चाय बनाने का कहा। फिर उसने खुद केक भी बेक किया और ट्रे थमाकर मुझे बाहर आने का कहा। मैं हैरान परेशान सी बाहर आ गई। देखा तो ड्राइंग रूम में चंद खवातीन और एक खूबरू लड़का बैठा हुआ था। ये लड़का शक्ल से ही कम उम्र लगता था, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मेरा हम उम्र था। साजिदा ने इन लोगों के सामने मुझे बैठने का कहा। औरतों के तेवर से अंदाजा हो रहा था कि वो मेरा रिश्ता लेने आई हैं। या खुदाया, ये क्या नई मुसीबत है? मैं एक शादी पर दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ? अल्लाह तू ही कुछ बेहतर कर। मैंने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन वो औरतें मुझे एक ही नज़र में पसंद कर चुकी थीं। थोड़ी देर के बाद साजिदा ने मुझे वहाँ से जाने का कहा। मैं अपने कमरे में आ गई। शाम तक किसी तरह बैठी रही। शाम को मुझे फ़कीरा बुआ ने इत्तला दी कि मुझे साजिदा बुला रही है। मैं उसके पास गई तो उसके चेहरे पर खुशी के आसार थे। मुबारक हो, ये लो मुँह मीठा करो। उसने मिठाई मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। किस बात की मिठाई बाजी? मैंने अनजान बनकर पूछा। ज़्यादा मासूम मत बनो, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। वो खिलखिलाते हुए बोली। मेरा रिश्ता? मगर मैं कुछ कहने ही वाली थी कि साजिदा ने मुंह पर हाथ रखकर मुझे चुप करवा दिया। थोड़ी देर के बाद सलमान भी घर आ गए। सलमान को भी साजिदा ने इसी तरह मिठाई का डब्बा पेश किया। इन्होंने भी पूछा कि किस बात की मिठाई है। तब साजिदा ने बताया कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। ये सुनते ही सलमान का चेहरा सुर्ख हो गया। मर्द चाहे जितना भी बेपरवाह क्यों न हो, वो गैरत के मामले में हमेशा सख्त होता है। जो औरत उसके निकाह में हो वो उसे अपनी मिल्कियत समझता है। सलमान का भी यही हाल था। अगरचे वो मुझसे बात तो ना करते थे, लेकिन मुझे खोने का एहसास कुछ इतना भी मामूली ना था। तभी उनके चेहरे के तासुरात बदल गए। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैं सलमान को अपना बना सकती हूँ, और शायद सलमान ने भी छोटी सी कोशिश तो ज़रूर की थी कि वो मुझे अपने घर से ना निकालें। वो कोशिश
उन रिश्ते वालों को मुझसे मुतनफ़र करना थी। रिश्ते वालों को फ़ोन करके बताया गया कि मैं पहले से किसी के निकाह में हूँ। जब ये बात हमारे घर तक पहुँची तो जैसे कोहराम मच गया। साजिदा ने आसमान सर पर उठा लिया, कहने लगी, न जाने ये किस कुमाश की लड़की है, अब तो मैं इसे एक पल अपने घर में नहीं रहने दूंगी। जिसके बारे में लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं, उसका किरदार आखिर क्या होगा। ये सुन सुनकर मेरा दिल कट रहा था, मगर मैं क्या करती। मेरे पास मेरे शौहर से ताल्लुक़ का कोई सबूत तो नहीं था। बस फिर क्या होना था। मेरी सौतन ने मुझे मार धाड़ कर घर से निकाल दिया। सलमान इस मामले में भी खामोश रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात की खबर थी कि अगर वो बोलेंगे तो उनका अपना घर बर्बाद होगा। मैं रोती धोती दरवाजे के बाहर बैठी ही थी कि दरवाजे पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। हॉर्न काफ़ी ऊंचा था। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने खूबसूरत गाड़ी खड़ी थी। ये गाड़ी शायद हमारे घर के अंदर पार्क होना चाहती थी। तभी मैंने अंदर से जाकर दरवाज़ा खोल दिया। यकीनन बीबी जी का कोई रिश्तेदार ही होगा। ये सोचकर मैंने दरवाज़ा खोला। गाड़ी खुली तो एक सेहतमंद खातून बरामद हुई। खातून ने अपना नाम बख्तावर बताया। उन्होंने अपने आप को सलमान की बहन जाहिर किया। मैंने आज तक सलमान की बहनों को नहीं देखा था। खैर मैं उन्हें अंदर ले आई। उन्हें देखकर सलमान और साजिदा खुश हुए, लेकिन साजिदा की ये खुशी मसनूई थी, क्योंकि उसे अपनी नंद से साफ तौर पर कोई हमदर्दी नहीं थी। बहरहाल वो जिस घराने में ब्याही गई थी वो अच्छा खासा खाता पीता घराना था, इसलिए साजिदा भी उससे दबी दबी रहती थी। थोड़ी देर के बाद साजिदा चाय पानी लेने चली गई। न जाने आज उसने क्यों मुझे ये न कहा कि खुद चाय बनाकर ले आओ। शायद इसलिए कि साजिदा का ताल्लुक एक निहायत अमीर खानदान से था। बहरहाल जब साजिदा चाय बनाने के लिए गई तो बख्तावर ने मुझसे अज़राए हमदर्दी पूछा, क्या बात है, तुम दरवाजे पर बैठी रो क्यों रही थीं? मैंने उनके इस सवाल पर कुछ न कहा। मेरी आंखें जगमगाने लगीं। मेरे आंसू मेरी कहानी कह गए थे। लफ्ज़ों से कुछ कहने की ज़रूरत बाकी नहीं रह गई थी। बख्तावर मेरे बहते आंसू देखकर समझ गईं कि मामला क्या है। इतनी देर में साजिदा चाय वगैरह लेकर आ गई। मेरा ख्याल था कि शायद साजिदा बीबी मेरा इस घर में कुछ लिहाज करेंगी, लेकिन इन्होंने अपनी नंद के सामने ही मुझे जलील करना शुरू कर दिया। गंदी औरत, तेरी वजह से मेरा शौहर घर से बाहर चला गया। तुझे क्या मिला मेरा घर बर्बाद करके? वो यूं धाड़ रही थीं जैसे घर में कोई तीसरा मौजूद ही ना हो। उनका ये रवैया मुझे बहुत बुरा लगा। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात के वक्त मेरे कमरे पर आहट हुई। मैंने देखा तो बख्तावर बाजी आई थीं। उनके चेहरे पर संजीदगी थी। मैंने कहा, कैसे आना हुआ? कहने लगी, बेटी तुम हमारे मोहसिन की बेटी हो, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे मोहसिन खान बाबा की बेटी का हम ये हाल करेंगे। देखो तो भला कैसी हालत बना ली है तुमने अपनी। अगर तुम्हारे बाबा इस दुनिया से चले गए हैं, हमें भी इस बात का बहुत दुख है, लेकिन अब तुम्हें खुद को संभालना होगा बेटी। बख्तावर आपी ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन वो मेरे चेहरे के कर्ब से अंदाज़ा लगा चुकी थीं कि इस घर में रहना मेरे लिए कितना तकलीफ देह है। शाम हुई तो इन्होंने साजिदा भाभी से कहा, साजिदा अगर बुरा ना मानो तो इस बच्ची को मेरे घर कुछ दिन काम करने के लिए भेज दो। आजकल बाकी मुलाजमाएं छुट्टी पर हैं। तुम्हारी बेटी काम करती रहेगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। तुम इसे मेरे साथ भेज दो। बख्तावर आपा के कहने की देर थी। साजिदा तो मुझे घर से बाहर करने के लिए पहले ही तैयार बैठी थी। फिर क्या था, अगले दिन मैं बख्तावर के साथ उनके घर जा रही थी। मैं गाड़ी में बैठी तो सलमान ने मुझे बड़ी अफसरदा नज़रों से देखा, जैसे वो मुझे चाहते हों मगर इजहार न कर पा रहे हों। खैर अब मैं किसी किस्म की खुशफहमी नहीं पालना चाहती थी। मैं बख्तावर बाजी के साथ उनके घर आ गई। यहाँ आकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक पुरसुकून ज़िंदगी किसे कहते हैं। मुझे इस घर में ज़्यादा काम तो नहीं करना पड़ता था, लेकिन काम के अलावा हज़ार मसले होते हैं जो औरतों को दरपेश होते हैं। उस दिन मैंने महसूस किया कि बख्तावर बाजी का देवर मुझे सीधी नज़रों से नहीं देखता। पहले तो ये सब कुछ ढका छुपा था, मगर एक दिन बख्तावर आपी घर से बाहर गई तो वो ढिठाई पर उतर आया। उसने मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मेरी और उसकी अच्छी खासी हाथापाई हो गई। लेकिन खुशकिस्मती से बख्तावर आपा न जाने कहाँ से अचानक वापस आ गईं। शायद उनकी कोई चीज़ रह गई होगी। बैरूनी दरवाजे की चाबी उनके पास थी, सो घर में वो बिला आहट के आ गईं। इन्होंने जब देखा कि उनका देवर मुझसे बदतमीज़ी कर रहा है तो वो दौड़ी हुई चली आईं। मैं भी उनके गले लगकर रोने लगी। उस दिन उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। कहने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दो। उनका देवर बदतमीज़ किस्म की तबीयत का मालिक था,
बख्तावर आपा ने मुझे यही समझाया कि किसी एक फ़र्द के रवैये से सारे घर वालों को बुरा नहीं समझते। तुम यहाँ महफूज हो और रहोगी, मैं तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं दूंगी। उनकी बात सुनकर मुझे तसल्ली तो हुई थी, लेकिन शादी की तलवार फिर भी मेरे सर पर लटक रही थी। कल को कोई अच्छा रिश्ता आ जाता तो बख्तावर आपा भी देर न करती, मेरा रिश्ता फ़ौरन तय करती। लेकिन अब मेरा यहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं था। एक दिन मुझसे रहा न गया, मेरा दिल भर आया। मैंने रात के वक्त सलमान को कॉल की, ये जाने बगैर कि इस वक्त साजिदा कहाँ होगी। सलमान से मैंने अकेले बात करने की दरख्वास्त की, उन्हें सारे हालात से आगाह किया, गैरत दिलाई और कहा, तुम कैसे मर्द हो जिसकी बीवी दूसरों के घरों में अपनी इज्जत बचाती फिर रही है। अपने घर में मुझे बांदी बनाकर रखो या नौकरानी, मगर कम से कम इस बात का तो ख्याल कर लो कि तुमने मेरे बाबा से वादा किया था। क्या तुम में इतनी भी मर्दानगी नहीं कि अपने एक वादे का पास रख सको। मेरी बातों ने जादू का सा असर किया। अगले ही दिन वो मुझे लेने पहुंच गए। बख्तावर को बताया कि घर में काम ज़्यादा है, उनकी बीवी ये घर नहीं संभाल पा रही। अगले ही दिन मैं वापस बंगले में आ गई, लेकिन अब काफ़ी कुछ बदल चुका था। मुझ पर बेगम साहिबा पहले की तरह गुस्सा नहीं करती थीं। शायद मेरे जाने से उन्हें अपने आप में कमी महसूस हुई होगी। मैं काम भी तो इतना करती थी। खैर, अब यहाँ रहते हुए अपने शौहर को नज़रअंदाज करना या उसकी निगाहों से नज़रअंदाज होना मुझे दिल ही दिल में काट खाने को दौड़ता था। मेरा दिल मारे घुटन के कभी कभी इस कदर ज़ोर से धड़कता कि मुझे अपनी मौत सामने नजर आती, मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मैंने अल्लाह से लू लगा ली। एक दिन मुझे किसी ने बताया कि सूरह कौसर के विर्द से मैं अपने शौहर को अपना दीवाना बना सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी के मसले हल कर सकती हूँ। गर्ज जिस नीयत से भी ये सूरत पढ़ूंगी, अल्लाह ताला मुझे फैज़ बख्शेंगे। मैंने ऐसा ही किया, सूरह कौसर की विर्द शुरू कर दी। उस दिन बारिश का मौसम था। न जाने कैसे सलमान मेरे कमरे की तरफ आ गए। कमरे में मैं गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रही थी। अल्लाह ताला से सलमान की मोहब्बत मांग रही थी कि सलमान की आवाज़ पर मैंने सलाम फेरा और वापस किचन में आ गई। किचन में आकर उनके लिए चाय बना ही रही थी कि बाहर किसी खटके की आवाज़ आई। शायद साजिदा बेगम बारिश से बचाने के लिए कपड़े इकट्ठे कर रही थीं। तभी उनकी नज़र किचन की तरफ पड़ी, जहाँ पर रोशनी ऑन थी। वो झटपट किचन में आईं तो देखा साजिद मुझसे महवे गुफ्तगू थे। मैंने उन्हें चाय बनाकर दी थी क्योंकि इन्होंने मुझे खुद चाय बनाने का कहा था। बताती चलूं कि नमाज के बाद मुझे सूरह कौसर पढ़ने की आदत थी। मैं सूरह कौसर पढ़ती और पढ़ते पढ़ते सो जाती थी। उस वक्त न जाने मेरे मन में क्या आई कि मैंने चाय पर वही सूरत जो पढ़ी हुई थी फूंक कर अपने शौहर को पिला दी। वो भी इस बात पर मुस्कुराए थे, मगर ज़्यादा नहीं। उनका चेहरा सुपाट और सर्ज था। खैर, थोड़ी देर के बाद साजिदा बेगम दंदनाती हुई किचन में दाखिल हुईं। उनका अंदाज ऐसा था जैसे उन्होंने दो मुजरिमों को जुर्म करते हुए पकड़ लिया हो, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तभी साजिदा मुझ पर चिल्लाने लगी। आगे बढ़कर मुझे बालों से पकड़ने की कोशिश की तो मेरे शौहर सलमान बीच में आ गए। बस बहुत हो गया, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो खुद चली जाओ, ये मेरी बीवी है और कहीं नहीं जाएगी। उनका ये कहना था कि महानूर हैरत से गंग मेरे शौहर को देखने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सलमान सौतन भी कर सकते हैं। सलमान मुझे उसी वक्त अपने कमरे में ले गए। पहली बार मुझे उनका कुर्ब नसीब हुआ तो मैं जैसे मुकम्मल हो गई। आज भी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मैंने अल्लाह की डोर मजबूती से थाम रखी है कि जो लोग अल्लाह को अपना सहारा बनाते हैं वो कभी बेसहारा नहीं होते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।